ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੋਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਨਸੋਈਡਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਨਸੋਈਡਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਇਨਸੋਈਡਲੀ ਵੇਵ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਇਨਸੋਈਡਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ, ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੇਵ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਲਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਐਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਚ, ਓਨੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਅਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਐਟਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਵ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਵ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਪਰ ਪਲੇਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੇਵ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੇਵ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਗਿਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਮੈਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਵ ਹੂਜ਼ ਪਲੇਨ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੇਵ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਓਸੀਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੇਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਰੈਂਡਮਲੀ ਵੇਵ। ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਵੇਵ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਈਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨਟੂ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਈ 'ਚ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ 'ਚ। ਐਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਜ਼ੈਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ 'ਚ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ੈਡ ਵੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਵਾਈ ਵੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ 2 ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਵ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੇਵ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਲੋਂਗ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਵ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਇਹ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਆ ਜੂਗੀ, ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੈਡ ਵੱਲ ਆ ਜੂਗੀ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਦੈਟਸ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ
कैन बी थॉट एज सुपरपोजिशन ऑफ टू पोलराइज्ड वेव, मतलब जी अनपोलराइज्ड है असल विच वो दो पोलराइज्ड वेव, दो पोलराइज्ड मतलब कि एक डायरैक्शन पर्टिकुलर जैड वाले पासे है, एक वाई वाले पासे है। जो दोनों सुपरपोजिशन करती तो फिर इस तरह की वेव बन गई, फिर इस तरह की बन गई, मतलब वो अलग अलग डायरैक्शन च इलैक्ट्रिक वैक्टर बन गया अपने को। whose plane of vibration are perpendicular to each other. The symbol of unpolarized light shown in the figure 6G9C। आ साडे कोल जिहड़ी हैगी है आ देखो, आ अनपोलराइज्ड लाइट दिखाई है, ये आ वाली ਇਹਦਾ मतलब की है कि जी आ बिंदी है ये वाइब्रेशन इस तरह ने प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, आ जी तीर दिख रहा है ये प्लेन ऑफ पेपर के विच है, मतलब ये वाइब्रेशन पेपर के विच हो रही है। आ वाली जी है ये वाइब्रेशन जी बिंदी है दिखा रही है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप ये मान लिया कि सारी वेव जिन्नियां भी वेव्स ने सब दे इलैक्ट्रिक वैक्टर को दो भागों च वंड लिया, एक इस तरह होगा दो परपेंडिकुलर होंगे ना, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस एक अलॉन्ग जैड एक्सिस। ठीक है, तो जो आप आ देखो ये है कि यह अनपोलराइज्ड लाइट है, इनू अपने पास किया, ये जी सामने जी चीज़ रखी हुई है नाम है टॉर्मोनिल क्रिस्टल। टॉर्मोनिल क्रिस्टल ये तुहानूं विचाले लाइन दिख रही होगी ए बी, इनू बोलते हैं यदा कट विद इट्स फेस पैरलल टू द क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस ए बी, यदा क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस है ये इत्थों कट्टिया होया है। जो ये लाइट ये पास करती है, ध्यान नाल देखो हुण एक तो वाइब्रेशन इस तरह ने जिहड़ियां आ दिख रही तुहानूं तीर वालियां, एक वाइब्रेशन ये आह परपेंडिकुलर ने। जेकर हुण सामने समझण की गल है भी एक स्लिट है, ये दो तरीके नाल वाइब्रेशन जानी है, तो जो ये जाऊगी तो आ वाली वाइब्रेशन तो पास करगी, आ वाली की करगी ये पास नहीं करूगी, सिर्फ जी ये पैरलर सी वो तो पास कर जू, जो ये परपेंडिकुलर है वो पास नहीं करी। तो जो टॉर्मिनल क्रिस्टल के विचों अनपोलराइज्ड लाइट पास करी तो साडे कोल सारियां जिहड़ियां सिर्फ एक डायरैक्शन के विचों वाइब्रेशन बच गई, बाकी वाइब्रेशन की हो गई सारियां ब्लॉक हो गई। ठीक है, बाकी सारियां अब्जॉर्ब हो गई, रुक गई। तो जी आ परले पासे लाइट आई है अपने को, इहनूं बोलांगे आपां पोलराइज्ड लाइट। ये सिर्फ तुहानूं समझाउण वास्ते है, अपने को पेपर च की आउणी डेफिनेशन आऊगी दैट दिस फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वैक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरैक्शन, कि एक जिहड़ा तरीका है फिनोमिना है किरिया है कि जिहड़ियां लाइट वैक्टर हैगा उहदियां वाइब्रेशन नूं सिर्फ अपने एक डायरैक्शन च रिस्ट्रिक्ट करता मतलब एक डायरैक्शन च छड्डता परपेंडिकुलर टू द डायरैक्शन ऑफ वेव मोशन। तो ये जिहड़ा छड्डिया तुसीं ध्यान नाल देखो, आ जिहड़ा तीर दिख रहा होगा तुहानूं, आ तीर ये तीर ने जिहड़े आ की दिखा रहे हैं कि वेव इधर नूं जा रही है, तो आ की ने ये परपेंडिकुलर डायरैक्शन की है, इलैक्ट्रिक वैक्टर की डायरैक्शन है कि ये जिहड़ा फिनोमिना है जिहदे विच असीं रिस्ट्रिक्ट करता इलैक्ट्रिक वैक्टर नूं सिर्फ इक्को डायरैक्शन च छड्डिया, तो वो डायरैक्शन जिहड़ी हैगी है परपेंडिकुलर हैगी वेव प्रोपगेशन दे, इहनूं आपां बोलांगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो टॉर्मिनल क्रिस्टल का काम कर रहा है पोलराइजर का, जो लाइट नूं की कर रहा है पोलराइज कर रहा है। तो दिस इज क्रिस्टल इज नोन एज पोलराइजर, जो लाइट नूं पोलराइज करने के काम आ रहा है। Thus, electromagnetic wave are said to be polarized when their electric vector are all in a single plane। तो जी इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव नूं आपां पोलराइज्ड बोलांगे जो सारे इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वैक्टर है वो सिर्फ इक्को प्लेन दे विच वाइब्रेट कर रहा होए। ठीक है, तो उन्होंने बोलांगे आपां कॉल्ड द प्लेन ऑफ ऑसीलेशन। हुण ए प्लेन ऑफ ऑसीलेशन है, आ जिहड़ा प्लेन है ना ए बी सी डी, इहदे विच ये तीर है जिहड़ा वो ए बी सी डी आ प्लेन कि आ वेव इस तरह जिहड़ा हैगा पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट कर रहा, तो आ जिहड़ा प्लेन बन गया ए बी सी डी, तो वो की हो गया साडा प्लेन ऑफ ऑसीलेशन हो गया या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो गया। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर दिखा रखा के एल एम एन ये ਜਿਹੜਾ दिखा रखा ਇਹਨੂੰ बोलांगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर है, ਜਿਹੜਾ इस वाइब्रेशन ਦੇ परपेंडिकुलर है दैट इज नोन एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये दो प्लेन ने, एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या ऑसीलेशन जिस डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ की कर जिस प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिक फील्ड की कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है। एक आ वाला प्लेन दिखा रखा के एल एम एन, जिमें मान लो ए एम है एम आ वाला प्लेन जिस डायरैक्शन च वाइब्रेशन हो रही है ये प्लेन ऑफ की हो गया वाइब्रेशन। आ वाला प्लेन जिहड़ा इहदे परपेंडिकुलर है ये की हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। हुण इहदी एक एक्सपैरीमेंटल डिमोनस्ट्रेशन भी है, सिर्फ समझण वास्ते है, ये पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू चो नहीं है कुछ भी, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक डायग्राम देखांगे। देखो
ये अपने कोल की है, एक अनपोलराइज्ड सोर्स ऑफ लाइट है जिहड़ा अनपोलराइज लाइट छड्ड रहा है। ये सामने दो अपने टॉरमलिन क्रिस्टल रखे ने, दो पतले स्लाइसिस जिन्हां दे एक्सिस की ने एक दूजे दे पैरलल ने। जदों ये लाइट इहदे विचों दी पास कीती तां सिर्फ एक डायरैक्शन दे विच इलैक्ट्रिक वैक्टर बच गया जिहड़ा कि इहदे एक्सिस दे कट दे की सीगा पैरलल सी। सिर्फ उही वाइब्रेशन परले पासे पास होके आईयां। जदों आपां इहदे सामने एक दूजा टॉरमलिन क्रिस्टल रखता जिहदा कट ते इहदा कट की ने एक दूजे दे पैरलल ने, तां इहदे विचों दी लाइट पास करके आ गई। जिन्नी इहदे विचों पास करके आई सेम उन्नी उहदे विचों पास कर गई। पर जो मैं इस क्रिस्टल नूं T2 क्रिस्टल है जो मैं घुमाउणा घुमाउंदा 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 इहनूं परपेंडिकुलर करता। देखो हुण इहदियां लाइनां ते इहदियां लाइनां एक दूजे दे की ने परपेंडिकुलर ने। यह वर्टिकल लाइन ने, इहदे च हॉरिजेंटल लाइन ने। तो इधरले पासे की आ गया नो लाइट, हुण कोई लाइट नहीं आ रही। तो यह काहदा काम कर रहा पोलराइजर का, यह काहदा काम कर रहा एनालाइजर का। मतलब इन्हें लाइट नूं पोलराइज करता, ये उहदी ये कर रहा है उहदी सर्टिफिकेशन भी हाँ पोलराइज हो गई लाइट। क्योंकि जदों इनू मैं घुमाउणा तो हौली हौली पहला जो इनू देखो जो ये नहीं लग्या होया तुसीं इहनूं घुमाई इस पहले वाले नूं घुमाओ जिवें मर्जी घुमाई चलो, जिन्नी लाइट पहला इस डायरैक्शन च आ रही है घुमान तो हरेक डायरैक्शन च उन्नी लाइट आऊगी। क्यों इस डायरैक्शन च एक आ वाला प्लेन जिहड़ा पार आ गया, जो घुमा दोगे फिर आ वाला प्लेन पार आ जाऊगा, आ वाला प्लेन आ जाऊगा, आ वाला प्लेन आ जाऊगा। जिमें जिमें घुमाई चलोगे कोई लाइट के उपर कोई फर्क नहीं पैना। पर जो एक बार पोलराइज होने तो बाद सामने दूजा क्रिस्टल लगाता, जो तुसीं इहनूं घुमाओगे तो ये लाइट की इंटेंसिटी फर्क पऊगा। इधरले पासे जो लाइट होने तो तीन डंडी इधर दिखाई तीन इधर दिखाई ने, पर जो जो आप एंगल घुमाई जावांगे ये वैल्यू इंटेंसिटी की घटती जाऊगी। तो जो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए दोनों के एक्सिस एक दूजे के, तो कोई भी लाइट साडे कोले पास नहीं होनी। ठीक है, तो एक की सीगी साडे कोले एक्सपैरीमेंटल वेरीफिकेशन है कि लाइट किवें पोलराइज हुई। अगे साडे कोल आ गया नाइकोल प्रिज्म। नाइकोल प्रिज्म की एक डिवाइस है। नाइकोल प्रिज्म एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज लाइट, जो लाइट प्लेन पोलराइज लाइट नूं प्रोड्यूस भी करता है एंड एनालाइज भी करता है। दोनों काम करता है, लाइट नूं पोलराइज भी करता है तो एनालाइज भी करता है। तो ये की है साडे कोले प्रिंसिप आ क्रिस्टल दिखाया हुआ है ACGE, आ एक क्रिस्टल दिखाया हुआ है ने। ये असल च दो प्रिज्म ने, दो क्रिस्टल ने, दो नाइकोल के प्रिज्म ने ACG ते AEG, दोनों नूं आपस दे विच जोड़िया हुआ है। दोनों नूं एक गल्यू लगा के, इस गल्यू का नाम है कैनेडा बलेसम, इस विचाले गल्यू है कैनेडा बलेसम वो लगाई हुई है, उन्होंने लगा के जोड़िया हुआ है। ये आ वाले जोड़े एंगल ने 68 डिग्री के ने। ठीक है, तो जोड़े एंगल ने 68 डिग्री के ने। हुण जो आप एक प्लेन पोलराइज लाइट दी बीम चो पास करते हैं तो पहली गल तो जो क्रिस्टल है इस लाइट नूं दो भागों में तोड़ दिंदा है। एक तोड़ दिंदा ऑर्डनरी लाइट, एक बना दिंदा एक्सट्रा ऑर्डनरी लाइट। ओ रे ते ई रे, आ ओ रे है, आ ई रे है। देखो ओ रे ते ई रे लाइट जो ही एंटर करिए दो हिस्सों में टुट गई, एक आ सीधी जा रही है, एक मुड़ गई। ठीक है, हुण जिहड़ी ओ रे है इहदे विच इलैक्ट्रिक जिहड़ा वैक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसीपल सैक्शन है। देखो ओ रे दे उपर सिर्फ कल्ली बिंदी लगी हुई है, ओ रे दे उपर कल्ली बिंदी है, मतलब इहदे विच जिहड़ी इलैक्ट्रिक वैक्टर है इस तरह वाइब्रेट कर रहा है इस तरीके नाल। ते जिहड़ी आ वाली ई रे है इहदे विच प्लेन ऑफ इस तरह प्लेन दे विच वाइब्रेट कर रहा है। इट हैज़ इलैक्ट्रिक वैक्टर पैरलल टू द प्रिंसीपल सैक्शन। हुण देखो जिहड़ा ये विचाले ग्लू लगाई सी जिहदा नाम है कैनेडा बलेसम, इहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 1.55 है। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 1.55 है। हुण ओ रे वास्ते रिफ्रैक्ट जिहड़ा ओ रे है उहदे वास्ते कैल्साइट जिहड़ा है उहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 1.658 है। ई रे वास्ते जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है वह है 1.486। मतलब दोनों रे वास्ते रिफ्रैक्टिव इंडैक्स अलग अलग बढ़ रहा है इस प्रिज्म का। ठीक है, नाइकोल प्रिज्म का। तो हम देखो ओ रे है जिहड़ी ਉਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है 1.65। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਲੇਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ 1.55, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ 1.685 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1.55 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ 1.685 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 1.55 ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 'ਚ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन की सी कि जो एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम च जाए, डेंसर तो रेयर च जाए तो डेंसर तो रेयर च जाए एक खास एंगल ते, तो वह रे बाहर जाने की बजाय टकरा के मुड़ जाती है इस तरह।
वैसे तो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम ने। ट्रांसपेरेंट मीडियम की होगा लाइट एक मीडियम तो दूजे मीडियम जो जाती है तो मुड़ जाती है, पर जो आप एंगल ऑफ इंसीडेंट बढ़ाते जाने तो एक खास एंगल पर आके जो एंगल ऑफ इंसीडेंट क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा हो जाता है तो बाहर जाने की बजाय वो मुड़ के वापस ही आ जाती है। तो सिमिलर यही काम इत्थे हो गया। जी ऑर्डनरी रे है वो वास्ते यह एंगल ऑफ इंसीडेंट है जोड़ा वो क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा हो गया, तो हुण ये रे बजाए कि परले पासे जाए ये टकरा के इत्थों मुड़ गई रिफ्लैक्ट हो गई, जबकि जी आ दूजी रे सी ठीक है वो वास्ते रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना सी 1.486 तो कनेडा बलिज्म का कितना 1.55, मतलब ये रेयर तो डेंसर जा रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन आ मुड़न वाला काम कदों होंदा है जो रे जाए डेंसर तो रेयर दे विच, जो रे जाए डेंसर तो रेयर च, जे रेयर तो डेंसर जा रही है कदे भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन नहीं होंदा। तुसीं हुण गर्मियों के सीजन देखा होगा सड़कों के उपर तुहानूं पानी नज़र आता है, दूरों आप मोटरसाइकिल पर जाइए स्कूटर पर जाइए बस से जाइए तो सूँ लगता है कि सड़क के उपर पानी है, पर जो कोल जाने कुछ नहीं होंदा, जस्ट दूर खेत निगाह मारी सूँ ऐ लगता कि खेत अग लगी हुई है ठीक है, पर असल उत्थे कुछ भी नहीं होंदा। क्यों? सानू हवा हिलदी नज़र आती है, सड़क पर पानी नज़र आता है, उसका कारण होंदा टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन तां होंदा जेकर रे ऑफ लाइट है जी वो डेंसर तो रेयर मीडियम जा रही होवे तो एक खास एंगल तो ज़्यादा एंगल के उपर वो टकरावे। दोनों के विचाले जोड़ा ये सरफेस है जो दोने मीडियम को वखरा कर रहा है वो तो एक खास एंगल होंदा क्रिटिकल एंगल, जो उस तो ज़्यादा एंगल से इंसीडेंट होवे तां वो की होगा टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होगा। पर जो रेयर टू डेंसर जा रही है जोड़ा मर्जी एंगल होवे तो वह कदे भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन नहीं होगा, सिर्फ डेंसर टू रेयर होंदा। तो जी ऑर्डनरी रे है वह तो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, वो तो इस डायरैक्शन मुड़ गई। जिहड़ी सी एक्सट्रा ऑर्डनरी वो क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है वो तो कोई फर्क नहीं पैंदा, वो ट्रांसमिट हो जाती है एक प्रिज्म तो दूजे प्रिज्म चली जाती है। तो देखो हुण की हो गया आ वाली रे दे विच डायरैक्शन जिहड़ी हैगी वाइब्रेशन वो सिर्फ परपेंडिकुलर डायरैक्शन च रहेगी, आ वाली जी रे निकली है एक्सट्रा ऑर्डनरी वो डायरैक्शन सिर्फ आ वाली रहेगी। तो मतलब इस नाइकोलो प्रिज्म ने की करता एक रे नूं दो भागों के डिवाइड करता, ये भी प्लेन पोलराइज्ड है ये भी प्लेन पोलराइज्ड है। फर्क की है यदी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द वेव है ठीक है, यदी की है प्लेन ऑफ जी है प्लेन ऑफ द वेव दे विच है, ये प्लेन ऑफ वेव दे विच वाइब्रेशन ने ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेव दे वाइब्रेशन ने। तो इस नाइकोलो प्रिज्म ने वेव नूं दो हिस्सों के डिवाइड करता तो दोनों हिस्से की ने पोलराइज्ड ने, दोनों की जी वाइब्रेशन की प्लेन है वो अलग अलग है। अगे आगे डिटैक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, हुण आप डिटैक्ट किवें करते हैं, डिटैक्शन दस दिता मैंने कि अपने को एक पोलराइजर होंदा एक एनालाइजर होंदा ठीक है। तो a naked eye cannot distinguish between the polarized and unpolarized light, एक नंगी अख नाल असीं polarized ते unpolarized का फर्क नहीं पता कर सकते। एक क्रिस्टल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग दिस डिस्टिंक्शन, कैलासाइट क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल या नाइकोल प्रिज्म जिहड़ा हैगा वो इस काम वास्ते यूज होंदे ने, पोलराइजर का काम भी करते हैं एनालाइजर का काम भी करते हैं। पोलराइजर मतलब लाइट को पोलराइज करना, एनालाइजर मतलब पता करना कि पोलराइज होगी कि नहीं होगी। वैन अनपोलराइज लाइट आप पास करते हैं सिंगल क्रिस्टल के विचों तो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होनी है। पहला वाइब्रेशन इलैक्ट्रिक वैक्टर दी सारी डायरैक्शन सी, हुण सिर्फ एक डायरैक्शन ने क्योंकि दी पोलराइजेशन होगी। ऑन रोटेटिंग द क्रिस्टल इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइजेशन लाइट डज नॉट चेंज। हुण पहला तुहानूं दस्सिया सी मैंने कि पहले क्रिस्टल चों लाइट लंघ गई, इस क्रिस्टल नूं जिवें मर्जी घुमाई चलो इत्थे कोई फर्क नहीं पैंदा लाइट ते, क्योंकि कोई ना कोई इहदे कोई ना कोई जिहड़े अपने कोले इलैक्ट्रिक वैक्टर हैगा वो पास करूगा ही करूगा, किसी ना किसी डायरैक्शन वाला पास करूगा ही करूगा। हाएवर जी ट्रांसमिट होकर पहली बारी पोलराइज होने तो बाद आप दूजे पोलराइड चो देखा, दूजे एक होर क्रिस्टल चो देखा, तो जे हुण इनू घुमावांगे तो की होगा, ये घुमाण नाल इंटेंसिटी घटूगी। जो दूजे चो पोलराइज होने तो बाद दूजे क्रिस्टल चो देखा तो इंटेंसिटी से फर्क पऊगा। जे इंटेंसिटी से फर्क पै रहा है यदा मतलब जी लाइट साडे कोल आ रही है वो पोलराइज होकर आ रही है, जे इंटेंसिटी से फर्क नहीं पै रहा तो लाइट पोलराइज होकर नहीं आ रही। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए गिवन लाइट बीम की करें, इफ देर इज नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ एमरजेंट लाइट द इंसीडेंट लाइट इज अनपोलराइज लाइट। कहना जेकर कोई फर्क नहीं पै रहा इन्हू दोबारा इन्हू घुमाण के उपर सैकेंड में घुमाण से भी तो जी लाइट आ रही है वो अनपोलराइज लाइट ही है, इन्हें पोलराइज पहले वाले ने नहीं किया है। इफ देर इज चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ एमरजेंट लाइट विद मिनिमम नॉट इक्वल टू जीरो द इंटेंसिटी इज पार्शली पोलराइज। कहना जेकर की है इंटेंसिटी चेंज हो रही है एमरजेंट लाइट की ठीक है विद मिनिमम घट रही है पर जीरो नहीं हो रही, यदा मतलब वो पार्शली है, कदे भी मतलब किसी भी एंगल से तुसीं इहनूं दूजे नूं घुमा लो तो वो बिल्कुल जीरो कदे नहीं होएगी। मैं दस्सी ना भी ये परपेंडिकुलर हो गया जीरो होगी, यदा मतलब जी ये लाइट से
पहला कंप्लीटली पोलराइज सी, पर जे मैं दूजा घुमा रहा, दूजा घुमाने के बावजूद भी लाइट घट तो रही है पर किसी भी एंगल ते जीरो नहीं हो रही हैगी। तो इसका मतलब जी आ लाइट आई सी पूरी तरह पोलराइज होई नहीं सी, ये किते ना किते होर इंटेंसिटी भी बाकी सी, ये होर वाइब्रेशन भी ने, सिंगल वाइब्रेशन बाकी नहीं हैगी, होर वाइब्रेशन भी हैगियां ने। पर जेकर इंटेंसिटी की हो जाए एक थां ते जाके जीरो हो जाए, जिवें इत्थे हो गई सी कि इहनूं ये दोनों के विचाले का एंगल 90 डिग्री करता, देखो इहदियां लाइनां इस तरह ने, इहदियां लाइनां हॉरीजेंटल ने, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस पोजीशन पर आके इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो, नो लाइट है परले पासे। तो आप बोलांगे जी आ लाइट पहले दे विचों लंघ के आई है, कंप्लीटली की सी पोलराइज सी। कंप्लीट समझ आ गया हुण तुहानूं। हुण आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने को दो इंपॉर्टेंट टॉपिक ने। पहला है लॉ ऑफ मॉलेस, की है लॉ ऑफ मॉलेस की कहता है, वैन अ बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसीडेंट ऑन ए एनालाइजर, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट आई ट्रांसमिटर फ्रॉम द एनालाइजर वेरीज डायरेक्टली एज द स्केयर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। आही गल जी मैं हुण दसी है तुहानूं कि एक पोलराइज लाइट है, लाइट पोलराइज होकर आ गई, पहले क्रिस्टल चों निकल के आ गई, पोलराइज हो गई, उस तो बाद अगे की पिया साडे कोल एनालाइजर पिया। तो एनालाइजर के विचों दी परले पासे कितनी लाइट जानी है वो डिपेंड करता है पोलराइजर ते एनालाइजर के विचाले दा एंगल कितना है। ठीक है, पोलराइजर के विचों लाइट लंघ के आ गई, फिर अपन किहदे पर पाती एनालाइजर ते, तो एनालाइजर चों जिहड़ी लाइट लंघ के परले पासे जाऊगी, जिहड़ी इंटेंसिटी है वो की कदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है या डिपेंड करती है काहदे उपर, वेरी करती है डायरैक्टली एज अ स्केयर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, कि इन्हां पोलराइजर ते एनालाइजर के जिहड़ा एक्सिस है उहदे विचाले कितना एंगल बन रहा है, उहदे कॉस स्केयर थीटा दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। आई डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्केयर थीटा, इसनूं आपां कोसाइन स्केयर रूल भी कहने आ। एंड इनू आप सिर्फ तां यूज़ कर रहे हैं कि जी लाइट आ रही है वो पहला की होके आ रही है, पोलराइज होके आ रही है, तां यह रूल जिहड़ा काम करता है। The transmitted intensity I is maximum and equal to the original intensity I naught when the original wave is polarized parallel to the polarizing direction of the sheet। कहना जी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है वो मैक्सीमम होगी ਜਾਂ जिन्नी ओरिजिनल है वो बराबर होगी ਜਦੋਂ एंगल दोहां ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 डिग्री, एनालाइजर ਤੇ पोलराइजर ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। when the original wave is polarized perpendicular to the polarizing direction as sheet theta is equal to 90 degree। to prove that this law, सपोज ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिक वैक्टर ट्रांसमिटेड बाय द पोलराइजर। हुण देखो मान लो साडे कोल जिहड़ी साडे कोल एक पोलराइज्ड लाइट होके आई है, उहदा साडे कोल ए जिहड़ा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड समझदे हो ना, आ जिहड़ा वाइब्रेशन इस पोजीशन तो आ वाला जिहड़ी मैक्सिमम दूरी हुंदी है, इहनूं आपां की बोलदे हुंदे आ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, OP ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਆਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ OA ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ OP, ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਪਿਆ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ OA। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਹੁਣ पैरलोग्राम ला आप लगाने, पैरलोग्राम ये साडा जिहड़ी लाइट आई सी पोलराइज चों लंघ के ओहदा ये एनालाइजर दा जिहड़ा कट है वो है, दोहां दे विचाले कि एंगल बन रहा है थीटा, मतलब ये पोलराइजर दा एंगल वो कट है, ये एनालाइजर दा कट है, दोनों दे विचाले एंगल कितना बन रहा है थीटा। ठीक है, ए की है एंपलीट्यूड है। तो प्लेन ऑफ एनालाइजर OA की है थीटा एंगल बना रहा है OP के नाल। टू रैक्टेंगुलर कंपर हुण ए नूं आपां दो भागां तोड़ लांगे, जिधर नूं एंगल हुंदा है वो बन गया A cos थीटा, जिधर नूं एंगल नहीं हैगा वो बन गया A sin थीटा। हुण सिंपल जी गल है, जदों लाइट जिहड़ी हैगी है वो इहदे विचों लंघूगी एनालाइजर ते लंघूगी तो आह वाला तो ब्लॉक हो जू, आह वाला कंपोनेंट, क्योंकि कहता पर इस डायरैक्शन दे की है, ये परपेंडिकुलर है, ये तो ब्लॉक हो जू। पास किहड़ा होऊगा कल्ला आ होऊगा पास। तो जी इंटेंसिटी का फार्मूला याद करो की होंदा वो KA स्केयर, याद है ना, इंटेंसिटी जी होंगी है वो कद बराबर होंगी है KA स्केयर। उरे सारे को A किन्ना है, पूरे सारे को A हैगा A cos थीटा, क्योंकि A की लिया सी अपने A एंपलीट्यूड लिया सी, तो A एंपलीट्यूड का की है इस डायरैक्शन च हिस्सा है, पार्ट है A दा, इस डायरैक्शन च A cos थीटा बनया, तो एंपलीट्यूड बन गया A cos थीटा। तो इनू आप स्केयर खोल दो तो की बन गया KA स्केयर cos स्केयर थीटा। K ते A दोने की ने कॉन्सटेंट ने, तो ये बन गया I डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सटेंट हटा के आप
सॉरी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हटा के आप कॉन्सटेंट लाने होंगे, कॉन्सटेंट हटा के आप की लगाता डायरैक्टली प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर थीटा। तो आही अपने प्रूव किया जो ये लॉ है लॉ ऑफ मॉलस, यही आप कहता है कि आई जो कॉस स्क्वायर थीटा दे की है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आ जो अपने ना हटाया है कि ए स्क्वायर इनू आप की नाम देता आई नॉट की है साढ़े को इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पोलराइजर, जो लाइट पोलराइजर के निकल के आई है वो इंटेंसिटी है, दैट इज कॉन्सटेंट। तो वैन द पोलराइजर एंड एनालाइजर आर पैरलर, जो तो पोलराइजर तो एनालाइजर पैरलर होणगे, मतलब दोनों की डायरैक्शन या तो पैरलर होगी जां एंटी पैरलर, थीटा 0 होगा जां थीटा 180 होगा, तो साढ़े को वैल्यू की आऊगी मैक्सीमम आऊगी। कॉस की वैल्यू 0 तो 1 होंगी है, 180 तो -1 होंगी है, क्योंकि उपर स्केयर है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पैंदा। तो जिन्नी पोलराइजर चों निकल के आऊगी लाइट उन्नी ही लाइट एनालाइजर तो अगले पासे आपको दिखूगी जेकर एंगल 0 या 180 होगा। पर जेकर होर होगा तो फिर जी पोलराइजर चो लाइट निकल के आई है तो एनालाइजर चो आपको दिख रही है वो वैल्यू सेम नहीं होनी, अलग अलग होगी। तो जे थीटा हो गया 90 डिग्री का तो कॉस 90 0 होंगे, तो मतलब पोलराइजर जी जिन्नी इंटेंसिटी आई है एनालाइजर से सानू कोई भी लाइट दिखाई नहीं देनी हैगी। तो असी ये भी प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट कि अनपोलराइज लाइट जी द लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट गैट पोलराइज्ड ऑन पासिंग थ्रू द पोलराइजर इट्स इंटेंसिटी बिकम हाफ। कहना असीं ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जी लाइट अनपोलराइज लाइट जी जो पहली बारी क्रिस्टल चो लंघदी है, देखो इत्थों ये पहली बारी क्रिस्टल चो लंघी है तो जिन्नी इंटेंसिटी इत्थे सी लंघण तो बाद इत्थे अद्धी रह जाती है। तो इनू किवें प्रूव किया अपने को, हुण देखो जिहड़ा अपने को अनपोलर लाइट है वो वाइब्रेशन सारी डायरैक्शन ने, ठीक है, हर एक डायरैक्शन के वाइब्रेशन छड्ड रही है, वो जी अनपोलराइज लाइट है हर एक डायरैक्शन छड्ड रही है। तो वह टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया पूरा का पूरा 0 तो लेके 2 पाई। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है, इनू इंटीग्रेट कर दो कितों लेके कित तक 0 तो 2 पाई तक। ठीक है, जे आप कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कढ़नी है काहदे वास्ते पूरे एंगल ते, तो इनू इंटीग्रेट करो। तो कॉस स्क्वायर थीटा को डायरैक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, तुहानूं पता होना चाहिए मैथ के फार्मूला लगो 1 + cos 2 थीटा बटा 2, फिर यदि इंटीग्रेशन होगी 0 तो 2 पाई डी थीटा। हुणे किवें होगी 1 बटा 2 पाई बाहर उवें दा उवें, इत्थे ब्रैकेट आ गई 1 बट आ 2 भी बाहर कढ़ लो तो की हो गया, ये 4 पाई हो गया। 1 डी थीटा प्लस 1 डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, ये दोहां दा की होगा 0 तो 2 पाई तक, 0 तो 2 पाई तक की होगा इंटीग्रेशन होगा। हुण 1 बटा 4 पाई है बाहर, ਇਹਦਾ की बनूगा डी थीटा का इंटीग्रेशन करके की बन जूगा थीटा 0 तो 2 पाई। कॉस 2 थीटा का कॉस की इंटीग्रेशन की होंगी है साइन, कॉस की इंटीग्रेशन होंगी है साइन। ठीक है, 0 तो 2 पाई। इधर की है एवरेज वैल्यू है, कादी एवरेज वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कढ़ रहे हैं आप 1 बटा 4 पाई। लिमिट भरो 2 पाई माइनस 0, लिमिट भरो साइन 2 पाई माइनस साइन 0, 1 बटा 4 पाई 2 पाई माइनस 0 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होंदा है, साइन 0 0 होंदा है, तो की बच गया कितना आंसर आ गया, 1 पाई नाल पाई कट गया 1 बटा 2, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जी एवरेज वैल्यू है कि निकलती है वो 1 बटा 2 निकलती है। ठीक है, तो अपने को की सीगा आई काहदे बराबर है, आई डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी आई बराबर है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1 बटा 2, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट बटा 2। तो जी इंटेंसिटी साढ़े को परले पासे निकलती है पोलराइजेशन होने तो बाद वो जिन्नी मैक्सीमम इंटेंसिटी सी अनपोलराइज लाइट की उदों अद्धी होंदी है। ये अपने इत्थे प्रूव करते हैं, प्रूव करना पेपर दे विच आ सकता है 2 नंबर दे विच। ठीक है, हुण पोलराइजेशन कई तरीके नाल हो जाती है बाय स्कैटरिंग, जो लाइट स्कैटर करती है, स्कैटर का मतलब तुसीं इस यूनिट दे विच पढ़िया कि जो लाइट फॉल करती है किसी ऑबजैक्ट के उपर किसी पार्टिकल के उपर जिहदा साइज लाइट की वेवलैंथ के लगभग बराबर होवे, तो वैन बीम ऑफ वाइट लाइट इज पासड थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम जो पास करती है
ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਹੂਜ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਆਰਡਰ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜ਼ੈਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਐਕਸ ਇਹ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਚਾਹੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕੀ ਦਿਖੂਗੀ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਦਿਖੂਗੀ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਐਕਸ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੈ, ਵਾਈ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿਖੂਗਾ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਗਲ ਦਿਖੂਗਾ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿਖੂਗਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਊਗੀ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਟ ਵਿਚ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ ਔਰ ਬ੍ਰੈਵਸਟਰ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਟ ਵਿਚ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਗੀ, ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ। ਇਹਨੂੰ IP ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਵਸਟਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਨ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਪਲੇਨ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇਹ ਪਲੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਇਹ ਆਵੇ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਮੇਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ IP ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਚੇਂਜਡ। ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਹਾਊਐਵਰ ਦਾ ਉਧਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ IP ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਗਲ। ਮੋਸਟ ਜਦੋਂ IP ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ IP ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੈਟ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਐਂਡ ਨਾਟ ਰਿਫਲੈਕਟਡ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਨ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਫਰੈਕਟ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੇਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਂਸ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਕਿ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਵਸਟਰ ਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਵਸਟਰਜ਼ ਲਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾ ਵੈਨ ਅਨਪੋਲਰਾइज ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਟ ਪੋਲਰਾइजिंग एंगल ਆਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲਰਾइजिंग ਅਨਪੋਲਰਾइज ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ IP एंगल ਤੇ ਪੋਲਰਾइजिंग एंगल ਤੇ ਔਨ ਐਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ फ्रॉम द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स म्यू कोई भी ग्लास भी हो सकता कुछ भी हो सकता है भी ये डेंसर है बस ये रेयर है बस अपने ये समझना है दैन द रिफ्लैक्टेड लाइट है जी फुली पोलराइज्ड होंगी है तो जी आ लाइट है पूरी तरह की हो जाती है पोलराइज होंगी है तो आ प्रूव होंगे म्यू इज इक्वल टू tan IP का फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू tan IP ये अपने प्रूव करना है इनू कहते हैं ब्रेवेस्टर्स ला की रिलेशन दिस रिलेशन इज रिप्रजेंट एज ब्रेवेस्टर्स ला ठीक है नोट दैट द पैरलर कंपोनेंट ऑफ द इंसीडेंट लाइट डू नॉट डिसअपीयर ਜਿਹੜੇ पैरलर ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਰਿਫਰੈਕਟ ਇਨਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਦ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਜ਼ ਗਈ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੋ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੈ L ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਟ इस डायग्राम नूं देखो कि आ साडे कोले दो मीडियम ने उपरला मीडियम होर है इनू आपां एयर कह दो इनू आपां वाटर कह लो जां कोई भी होर मीडियम है एनी मीडियम आ लाइट आई है अपने कोले हुण इह 'च दो तरह दी वाइब्रेशन आपां पहले ही कर चुके वाइब्रेशन तो बहुत सारे थावां ने पर आपां इलैक्ट्रिक वैक्टर नूं आपां जदों सारियां इलैक्ट्रिक वैक्टर दा की करदे आ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੋਊ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ IP ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਇਕੱਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ तो एक लाइट साढ़े को जी होगी इस तरह इधरों ये रिफ्रैक्ट ये हैगी रिफ्लैक्ट L दे नाल रिफ्लैक्टड रे या लाइट ये हैगी रिफ्रैक्टड R रिफ्रैक्टड रे तो ये किहड़े कंपोनेंट ने साढ़े कोले आ चीज़ इंपॉर्टेंट है भी जी रिफ्लैक्टड रे है तो रिफ्रैक्टड रे है इन्हों के विचाले जो है 90 डिग्री का कोण बनता है दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंक ठीक है हुण आपां नूं तुसीं ला ऑफ रिफ्लैक्शन पढ़े ने जिन्ने एंगल ते एंगल ऑफ इंसीडेंट हुंदा है उन्ने ही एंगल ते की हुंदी है रे रिफ्लैक्ट हुंदी है इहनूं आपां R डैश के है ये काहदे जिन्ना एंगल आ वाला होगा इंसीडेंट रिफ्लैक्शन ला ऑफ रिफ्लैक्शन की सीगा एंगल ऑफ इंसीडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन आ वाला एंगल किहड़ा बनूगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R ये बराबर नहीं होंगे आपस IP ते R बराबर नहीं होंगे है हुण कहंदा इट हैज़ बीन ऑब्जर्वड एक्सपेरिमेंटली व्हेन लाइट इज इंसीडेंट एट पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लैक्टेड कंपोनेंट OB आ रिफ्लैक्टेड कंपोनेंट है OB एंड रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट आ OB रिफ्लैक्टेड है ठीक है तो रिफ्रैक्टेड अपने को की है OC O ए दे नाल आई है आ O पॉइंट है OB नाल रिफ्लैक्ट हुई है OC नाल रिफ्रैक्ट हुई है तो OB ते OC की ने परपेंडिकुलर ने मतलब आ वाला एंगल इनू XY नाम दे दें सरफेस में तो एंगल BOY प्लस एंगल YOC ये 90 डिग्री है ये एक्सपेरीमेंटली आप देखिए हुण BOY आ वाला जो एंगल है BOY इनू मैं की लिख सकदा इनू आप नाम दिता N इत्थे जिहड़ा नॉर्मल बनाया सी ये N है इनू आ दे सकदा मैं BOY नू भी NOY दे विचों आ वाला एंगल घटा दिए जे NOY जिहड़ा 90 डिग्री का एंगल है NOY ये चों मैं आ एंगल घटा देना तो की बच गया BOY बच जूगा यानी कि 90 माइनस IP ऐ लिख सकते हैं आप तो YOC नू की लिख सकदा मैं YOC नू की लिख सकदा आ भी एंगल 90 का इत्थे तक आ वाला एंगल जिहड़ा 90 का बन रहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ एंगल घटा ਦਾਂ ਕਿਹੜਾ एंगल है ये R तो 90 माइनस R की है 90 तो 190 नाल 190 गया कट ठीक है तो आ भी माइनस का आ भी माइनस का ये 90 इधर रख लिया आ परले पास चले गए IP प्लस R ठीक है जां इत्थों अपने R की वैल्यू कढ़ ली R इज इक्वल टू 90 माइनस IP हुण एक
ਲਾ ऑफ ਜਿਹੜੇ रिफ्रैक्शन ने वो दूजा ला है स्नैल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो वो की होंगे म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। यह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 2 के साइन आई बटा साइन आर। हुण आई किन्ना है अपने को, आई तो है साइन आई पी, तो साइन आर की थां ते आपां की लिख दिंदे आ, इत्थे लिख दिंदे 90 माइनस आई पी, क्योंकि अपने प्रूव किया। ठीक है, तो उपर तो साइन आई पी जिमें हैगा ओमी का ओमी रह गया। साइन 90 माइनस थीटा की होंगे कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन आई पी बटा कॉस आई पी की बन गया, ये बन गया टैन आई पी। यही अपने प्रूव करना सीगा ब्रेविस्टर ला, म्यू इज इक्वल टू टैन आई पी। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द ब्रेविस्टर्स ला। हुण जे आपां नूं कोई भी मीडियम दिता होवे, जिवें गलास ते एयर ते गलास इंटरफेरेंस है, मतलब इत्थे एयर है, आ की गलास है, तो म्यू की जिहड़ी वैल्यू हुंदी है 3/2। एयर ते गलास वास्ते म्यू की वैल्यू कितनी होंदी है 3/2। तो जे आपां 3/2 की भर दी उरे, तो टैन आई पी, इत्थों जिवें आई पी कड्ढना होवे तो की होऊगा टैन इनवर्स, इधरले पासे टैन इनवर्स हो जाऊगा 3/2। तो यदा जो मुल है वह 56.3 डिग्री है। मतलब कि एयर ते गलास वास्ते आ आई पी का एंगल, जिहदे वास्ते यह रिफ्लैक्टड रे की होगी पोलराइज्ड होगी, वो किन्ने एंगल ते होगा, आई पी कितना होना चाहिए 56.3 डिग्री एंगल ते जेकर लाइट फॉल करे एयर ते गलास इंटरफेरेंस के उपर, तो जी रिफ्लैक्टड रे है सानू की मिलूगी, वो पोलराइज्ड मिलूगी सानू। ठीक है, इस तरह वाटर वास्ते जोड़ा है यदा मुल 1.33 है, तो वह एंगल बनता 53.1 डिग्री। हुण इत्थे आपां जो स्टार्ट किया सी, आपां मन के चले सी आपां कि रिफ्लैक्टड रे ते जिहड़ी रिफ्रैक्टड रे है ये विचाले 90 का एंगल बनता है, पर आपां इनू प्रूव भी कर सकते हैं, यदा इनवर्स भी आ जाता। मतलब आ सानू दिता होया तो असीं प्रूव करना है कि रिफ्लैक्टड रे ते रिफ्रैक्टड ने एक दूजे के परपेंडिकुलर ने। तो आप इत्थों किवें प्रूव करांगे, हुण आपां उल्ट, मतलब इहदा उल्ट किवें प्रूव करांगे। म्यू इज इक्वल टू की है टैन आई पी है, फ्रॉम कित्थों आ गया ब्रेविस्टर्स ला तो टैन आई पी नूं की लिख सकदा मैं साइन आई पी बटा कॉस आई पी। इक्वेशन नंबर 1। स्नैल का नियम लगाओ, कित्थे स्नैल का नियम इत्थे लगूगा ओ पॉइंट ते, साइन आई बटा साइन आर, हुणे दस्सिया आपां ने साइन आई बटा साइन आर, आई का मुल कितना है आई पी, साइन आर आ वाला आर नहीं लेना है, क्योंकि रिफ्लैक्शन एक ही नियम है रिफ्रैक्शन का जो लाइट एक मीडियम तो दूजे मीडियम जाए तो आ वाला आर यूज होगा। एक किहड़ा आर है रिफ्लैक्शन का, जो लाइट टकरा के उस मीडियम वापस जाए, इनू आपां नंबर 2 कह दें। हुण जे दोने ए भी म्यू है ए भी म्यू है, तो दोने पासे भी बराबर होणगे। जे इधरला हिस्सा बराबर है तो इधरला भी बराबर होगा। तो उपर साइन आई पी है, नीचे भी साइन आई पी है, एक कट जाएंगे, तो साइन आई पी बटा कॉस आई पी, साइन आई पी बटा साइन आर, आ के कट, इत्थे की बच गया हुण 1 कॉस आई पी 1 साइन आर, जीरो नहीं कर देना उत्थे। ठीक है ना, गुणा हुआ, हुण इनू इधर गुणा कर दो, इनू इधर कर दो, की बन गया साइन आर बराबर है कॉस आई पी, साइन आर बराबर है कॉस आई पी। तो साइन आर इज इक्वल टू, मैं इनू की लिख सकदा अपने उरे की किया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मैं कॉस नूं साइन च बदलना हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन नाल साइन गया कट, की बच गया आर बराबर है 90 माइनस आई पी, इनू इधर चक लिया, की बन गया आई पी प्लस आर बराबर है 90 डिग्री, आई पी प्लस आर बराबर है 90 डिग्री। हुण आई पी देखो, आई पी ते आर डैश में और की लिखे हुए हैं बराबर लिखे हुए हैं, मैं तुहानूं उपर पहले ही समझाया सी कि एंगल ऑफ इंसीडेंट बराबर काहदे हुंदा है, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन हुंदा है। तो मैं आई पी की जगह ते की लिख सकदा आर डैश लिख सकदा प्लस आर हैगी है बराबर है 90। हुण जिहड़ा आर डैश है, आर डैश है, इनू मैं किवें लिख सकदा, आ टोटल कितना है NO वाई कितना 90, और आ घटा दो, ये किहड़ा है BO वाई,
की घटा दो 90 माइनस BOY, ये की बन गया R डैश। R नूं किवें लिख सकदा मैं, आ 90 सीगा YON डैश, ये 90 सीगा, इहदे विच्चों आ वाला घटा दो, किहड़ा घटा दो YOC, तां की बच जूगा R बच जूगा, तो 90 माइनस YOC 90, 90 नाल 90 एक की हो गया कैंसल हो गया, आ दोने माइनस दे ने परले पासे चक के ले जाओ, तो की बन गया 90 इधर रह गया, की रह गया इत्थे, इत्थे की रह गया साडे कोले BOY प्लस YOC। हुण BOY ते YOC, BOY ते YOC ये टोटल की बन गया, आ वाला एंगल बन गया, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। ये की हो गया एंगल बिटवीन रिफ्लैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेस, यही अपने प्रूव करना सी, कितनी डिग्री का 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये साडे कोल की है ब्रेवस्टर्स ला ते ओहदा इनवर्स। ब्रेवस्टर ला दी आपां स्टार्टिंग की मन के चले सी कि रिफ्लैक्टेड ते रिफ्रैक्टेड के विचाले एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपने प्रूव करता IP म्यू बराबर है tan IP। पर जे आपको ये दिता होवे कि अपने को एक ब्रेवस्टर ला तो प्रूव करो कि रिफ्लैक्टेड ते रिफ्रैक्टेड रे ने जिहड़ियां वो 90 का एंगल बनदे ने, तो आप इत्थों प्रूव कर सकते हैं, डायग्राम वही चलूगी, ठीक है। यही सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पोलराइजेशन वाले डिटेक्टर दे विचों। अगे साडे कोले आ गया लास्ट टॉपिक इसदा पोलराइड्स ते उन्हां दे यूज। पोलराइड की है पोलराइड इज ए मटीरियल विच पोलराइज द लाइट, कि वो मटीरियल जिहड़ा लाइट नूं की करदा पोलराइज कर दिंदा, उहनूं आपां की कहने पोलराइड कहने आ। जिवें आपां हुण की पढ़िया कैलेसाइट क्रिस्टल पढ़िया, ठीक है, टॉरमोलिन क्रिस्टल पढ़िया, ये की सी कि साडे कोले ये पोलराइजिंग मटीरियल सी जो लाइट नूं की करदे ने पोलराइज करदे ने। तो पोलराइड्स आर नाउ आर्टिफिशली मेड कर बनाए जाते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट स्मॉल नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ क्यूनिन आइडोसल्फेट, क्यूनिन आइडोसल्फेट मटीरियल है, वो छोटे छोटे क्रिस्टल ने, उन्होंने भी प्रॉपर्टी है कि लाइट में की कर देंगे पोलराइज कर देंगे। ए नंबर ऑफ दीज क्रिस्टल विद देयर एक्सिस पैरलर, यह जो बहुत सारे क्रिस्टल जिन्होंने आपस एक्सिस की हूँ पैरलर हूँ, तो उन्होंने पैक कर दी एक शीट ऑफ प्लास्टिक के तो कहदा काम करते हैं पोलराइज का काम करते हैं। हूँ ये काम कितने आते हैं, इसका फायदा की है सानू, क्यों आप इनू पढ़िया। पहला अवॉइड द ग्लेयर ऑफ लाइट, जिहड़ियां अपनी सन ग्लासिस होंदियां ने, ठीक है, जिहड़ियां आपां दिने धुप्प वेले पाउने आ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ सूरज की रोशनी ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੇਅਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ पोलराइड्स, ठीक है। जिन्नियां वो अच्छी किस्म ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਉਨੇ अच्छी किस्म के पोलराइड यूज़ होणगे ਤੇ ਉਨੀ अच्छी तरीके नाल काम करनगियां। एक तुसीं देखिया होगा एक लाइट एक रात एक पीलियां जिहियां ऐनकां होंदियां ने येलो जे कलर दियां जिहड़ियां रात नूं लोग मोटरसाइकिल चलाउण वाले गड्डी चलाउण वाले यूज़ करते हैं। उन्होंने आपां रात नूं बड़ी वधिया काम करदे ने, क्यों रात नूं जिहड़ियां अग्गों लाइटां पैंदियां ने गड्डियां दियां, तां उन्हां विचों उहनूं की करदियां ने, वो प्लेन पोलराइज्ड कर दिंदियां ने, जिहदे नाल अखां 'च पैण वाली ग्लेयर है जिहड़ी वो घट जांदी है, ठीक है। पोलराइड्स का काम करते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जी इक्को डायरैक्शन रह जाती है, घट जाती है, तो सानूं लाइट फैली हुई नज़र नहीं आती। जिवें आम शीशे जो लाइट जो निकलती है तो फैल जाती है, तो सानूं कुछ भी नज़र नहीं आता है साफ, ठीक है जी। तो पहला काम हो गया है अवॉइड द ग्लेयर ऑफ लाइट। दूजा आ गया अवॉइड द ग्लेजिंग लाइट ऑफ कार अप्रोचिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। दस्सिया ना भी जी लाइट कार अगों आती है ग्लेजिंग लाइट फैली हुई लाइट आती है अपने को, ठीक है, नाइट ड्राइविंग करते हुए। पोलराइज्ड फिटेड ऑन द विंड शील्ड, तो जी वधिया गड्डी होंदी विंड शील्ड के पोलराइज होंगे ने ऑन द कवर ग्लास ऑफ हैडलाइट ऑफ ईच लाइट, जी हैडलाइट ने वो उपर भी लग जाते हैं कवर ग्लास। दीज अरेंजमेंट सो मेड द पोलराइड्स ऑन द विंड शील्ड ऑफ द वन कार एंड दोज ऑफ द कवर ग्लास ऑफ द हेडलाइट ऑफ द कवर ऑफ द कार बिकम क्रॉसड, देयरफॉर द ग्लेयर इज अवॉइडेड, ठीक है। तो इस तरह लगाए जाते हैं भी जी कार की हैडलाइट चो जी लाइट निकल रही है वो तो जी विंडशील्ड के पोलराइज लग्या वो आपस के एंगल कितना होंगे 90 डिग्री। जिमें आप दो क्रिस्टल किए ना टॉरमलिन के कि उन्होंने एंगल 90 डिग्री का कर दो आपस, तो जी लाइट कार के शीशे चो लंघ के पहुँचूगी वो बहुत घट पहुँचूगी एज कंपेयर टू जी कि हैडलाइट चो निकल के आ रही है, तो उन्होंने देखने मदद मतलब कि मिलूगी सामने जोड़ा ड्राइवर है। ऑब्जैक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप जोड़े लैंज होंगे ने वह जो ऑब्जैक्टिव लैंज है वो भी पोलराइज होंगे जो सानू शार्प इमेज मिले, ठीक है, नहीं ग्लेयर ना मिले सानू। क्लीयर फोटोग्राफ ऑफ वाइट क्लाउड
ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਣੀ ਤਾਂ ਪੋਲਰਾਈਡ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਕੈਟਰ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਾਰਸ਼ਲੀ polarized is cut off by the polarides. Only the light reflected from the cloud being unpolarized enter the camera and we obtain the distinct picture of the cloud. Polarize are useful in the three-dimensional motion picture. Holography ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲੇ ਜਿਹੇ ਸਟਿੱਕਰ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਕਲਰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਇਨ ਦਾ ਓਲਡ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਐਂਡ ਵਾਚਿਸ ਲੈਟਰਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਬਾਏ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਥਰੂ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਟਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਚਿਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੈਟਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। CD ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ CD ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਕੋਡਡ ਲਾਈਟ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਕੈਟਰਡ ਸਨਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲਰ ਕੰਪਾਸ ਇਨ ਦਾ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨ। ਪੋਲਰ ਰੀਜਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਕੰਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਕੈਟਰ ਸਨਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਏ ਡਿਟਰਮਿਨਿੰਗ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ IP using the Brewster law, refractive index of the dark transparent substance can be determined। ਕਿ Brewster law ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ IP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, refractive index ਫਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Polarization is also used to study the asymmetric in crystals and molecule using the phenomena of optical activity। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਸਿਮੈਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਖਾਸ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਏਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ ਪੋਲਰਾਈਡਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਡਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਲੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚੋਂ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਟੋਟਲ 70 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਕੱਲੀ ਯੂਨਿਟ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ।